I think for the longest period since we started this library, even before that, with the students that I mostly have taught, I have always been telling everyone that till the time you don't test yourself, you have no idea where you are. And mostly I have seen this that students run away from tests. They don't want to give it. They are like last moment में जाके देंगे. अभी preparation बहुत अच्छा चल रहा है. So for that sake, Raj Agarwal knows this very well. I'd been telling this right from the beginning. He was there for a good long time with us. And again, test was always something that you end up delaying because somewhere you feel जब पूरा तैयार हो जाएगा तभी टेस्ट देंगे. The day I will feel confident, that day I want to give test. Versus understanding that giving the test starts to build the right confidence. It Sir, starts to if it improve was your way not of you, studying most essentially. if it was not you, we ourselves wouldn't have sat for 3 hours and taken a test, that's for sure. We would have not been so serious. I don't know about others, but me, too, I would have not sat for 3 hours I'm for a glad that stretch. at least you people could listen and you people were ready and adaptive towards this. Because at a certain point, when I asked for the first time, this is something that occurred to me so many times that I can just simply go for a random test. So, for that sake, I think it was exactly in Feb previous year when I ended up telling a lot of students that you must start with random tests. No matter how you pick it up. And I even created, an Excel random generator for them so that they can just pick up the questions. Even then, despite the fact that I was trying too hard, a lot of them were not ready to give the test because I telling them and they just listening was something that was not helping. आशीष को भी पता है इतना बोला है मैंने टेस्ट के लिए एंड आशीष का भी ऐसे ही रहता था ड्रिफ्टिंग हियर एंड देयर जैसे ही मैं टेस्ट बोलता था बस उस ऐसे गाड़ी ना ऐसे मुड़ जाती थी कि बस दे देंगे सर दे देंगे सर so good it is that all of you were pretty much adaptive towards this and you quickly started to understand the importance of it. So yeah, you are right. मुझे जल्दी शुरू कर देना चाहिए था. But it's Yes, never sir. too late. Even this much Yes, that we have actually. done Yeah, yeah. in previous 1 week, 3 hours of this, every other day we are going to give tests. We are not going to stop on that. So that is something which will totally change how you are doing your preparations, the right mirroring of your way of studying. So I think it will change the whole scenario. Yes, sir. Actually, yeah. Even the daily test we take, that was very helpful while revising, अगर ये actually. 3 घंटे का मैं इकट्ठा बोलता ना आपको कि अचानक एक दिन बस सीधा 3 hours का देना है ट्रस्ट मी मोर देन हाफ ऑफ यू वुड हैव क्रैश्ड in the beginning itself. It's just so that we have built up that momentum with half an hour test and then reaching up to 1 hour test. That trying a 3 hour test was not something where you felt कि पता नहीं हो भी पाएगा. At least some possibility was there कि 1 घंटे का कर रहे हैं तो 3 hour का भी कर ही लेंगे. Thank you, sir. My pleasure, Manasa. Thanks to you. You participated in it. You showed your zeal. And again, the fact that you people are being very adaptive. You're listening. You're receptive to listening and receptive to understanding that what I am saying makes sense. And in spite of running from it, you're trying to go along. Thank you. But the credit goes to you, sir. To all of us, always to all of us. Yeah, all Trust of me. us. Yeah. All of us. It's never just me. Without you people, this would not be possible. Without your sincerity, every single person's dedication, it would not be possible. Because you get a push when another person is also doing it. You also feel like doing it. So that comes from a cumulative energy. That's exactly the purpose of building this community. So that, nobody feels alone and nobody feels like, in a state where they are feeling that friction. They start to feel that this is cohesiveness and everyone can do it. So yeah, thank you to all of you. Yeah. Yeah. Thank ठीक you, है sir. next test में I am expecting that you are going to be able to perform better and your way of studying will improve with this because now you know the areas where you are committing the mistake. Yeah, and we should not at all ignore the simple things, sir. What it seems like it is very simple, and I don't know why, but my entire question paper was like a simple indices. But what we do is just we read and we don't spend much time on it. I didn't find any financial instrument, leases, all those complicated questions. No, only basic questions, but where we have not given much time to it, and all the theory chapters like this government grant of presentation of financial statement in the S1, that really does a major difference. See your This I actually did this mistake. I actually did it in my Jan 26, as I told you. That is, and then I started to like study everything. That's why my MCQ marks has increased gradually, or else this would you have have done not at thorough all study. happened. Yes, you have done thorough Yeah, I study. didn't That's why ignore it. MCQs need thorough study. You just cannot have it. I Yes, am damn sure on that. obvious.
Chalo, good. Hoping for better results in the coming days and just clearing out Yes, these sir. exams in this attempt itself. Yeah, sir. I should. थैंक यू सो मच। Thank. कोमल, कैसा रहा आज? Sir, पहली चीज की actually, तो I मुझे am खुशी ये है analyzing. कि पहली चीज की तो मुझे ये खुशी है कि थैंक गॉड यू पिक्ड अप 150 क्वेश्चंस इन स्पाइट ऑफ 300। आई वाज लाइक कि ये Yes, लड़की नहीं छोड़ेगी, ये आज भी 200-250 उठा लेगी। नहीं सर, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। थैंक गॉड यू डिड नॉट डू दैट। नहीं सर, मैंने आज 3 टेस्ट दिए थे टोटल। उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी दी थी। पॉलिटी का एनालिसिस हो गया है, जिसका मेरा रिवीजन भी परफेक्टली हुआ था। तो उसमें से 43 करेक्ट है, 6 इनकरेक्ट है। व्हाई? इन द 2 क्वेश्चंस आई जम्बल्ड अप मींस ये तो अभी विद द नहीं होना अनदर चाहिए, टॉपिक। अब और गुंजाइश नहीं है। अब तो हमने टाइम रिड्यूस कर दिया, उस टाइम को रिड्यूस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस करने का पर्पस ही है। पर क्वेश्चन इंटेंसिटी, फोकस, क्लैरिटी शुड बी मोर अवेलेबल। अब भी वो जंबल टाइप यस वाली चीजों की गुंजाइश नहीं है, सर। which essentially means you still are not reading things with enough care. No, sir. Today I read each question twice. First, I read the question. I got the answer. I kept it aside, and again I read the same question. मैम, आप And then सेम only I गलती दोबारा answered. कर रहे हो। ये सिंपल सी बात है। मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने गलत पढ़ा, मैंने समझा, मैंने सही पढ़ा। दूसरी बार भी मैंने गलत पढ़ा और मैंने सही समझा। No, sir. Actually, the 2 questions in which I jumbled. The first question, I read the question properly, but considered another topic. When the question was like mandamus, and I connected it with surgery. So So you're that saying kind of reasoning was the there. question was clear to you, but you could not connect the right context. Yes, sir. Actually, that polity was very tough language in that question particularly. चलो ठीक है, ठीक And है। another was like similar like this. हम्म। In the 2 points, in the 2 questions I forgot something, and in one question it was out of syllabus, and in another question 3 options were there. 2 were completely known to me, but one that was out of question. But I tried to give that a chance and completely chose the wrong one. So ओके, बाकी 50-50% दोनों पेपर में क्या chance हुआ? was there. बाकी दोनों का एनालिसिस अभी करना है आपको। हाँ सर, वो अच्छे नहीं गए हैं सर। एंड यू वर पर कर कॉन्फिडेंट रही ऑन हूँ। देम ऑलरेडी और नॉट? Actually, not sir. Confident because I didn't revise properly. फिर हम जो आपने पॉलिटी का दिया है उसी का टेस्ट बड़ा कर सकते थे ना। आपने फिर 2 सब्जेक्ट्स और क्यों घुसाए बीच में जब उनकी तैयारी नहीं थी? सर कल मैंने डिसाइड किया था मैं 3 टेस्ट दो। नहीं, ब्लंडर्स है ये। आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हो कोमल। नहीं सर, मैंने 2 इकोनॉमी का टॉपिक किया था। 2 चैप्टर मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैंने पूरे रिवाइज भी किए थे। बट आई गेस मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी भी कम है उसमें, तो अभी कुछ लेक्चर ढूंढकर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊंगी सर इस वीक में। ओके, टेल मी, बाकी दोनों के बीच में टोटल गलत कितने हुए हैं? मेरे को एनालिसिस नहीं चाहिए, बस गलत कितने हुए हैं? एक इकोनॉमी का दिया था, 15 इनकरेक्ट है, 25 करेक्ट है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है मैम, सर। 15 एंड 25 कितना होता है? 50 और 40। 40, देन आई स्किप 10। तो आप कह रहे हो 25 आपके नहीं हुए हैं और 25 हुए हैं, देखा जाए 10 आपने छोड़ दिए, 15 आपके गलत हुए हैं। तो दिस इज 50%। सो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी, नॉट एट ऑल अ गुड प्लेस टू बी। Yes, sir, I also understand that I am missing. The दूसरा? conceptual clarity is missing. दूसरा? और दूसरा ज्योग्राफी का था, उसमें से 31 करेक्ट है और 13 इनकरेक्ट है, और कुछ मैंने स्किप किए। Next time, do not commit a mistake of picking something that you're not prepared with, which essentially does not mean confident. It simply means you have studied it at least properly for the test. For these two subjects like geography and economy, I studied my notes, but I guess they are still lacking somewhere. Still lacking नहीं मैम, आपको ये समझने की जरूरत है जो आप सोच रहे हो वो सच नहीं है। ऑलरेडी टेस्ट आपको बता रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो सच नहीं है। आपने जो विश्वास sir. उसमें रखा हुआ है कि still I feel I am at a good place, you are not. So you need to actually work on a very deeper level on them. Yes, sure. In the last week, I understood that in polity I am weak, so I worked hard in the last week on the polity. So polity gave me the result. So actually, I was giving the history as well, but I cancelled that one. And instead of that, I chose the geography one. And in this week, I am going to do the history and economics. अभी आप जो भी पिक करेंगे वो पिक करेंगे जो आपने वाकई सिस्टमेटिकली पढ़ा है, जिसमें आप रियली कॉन्फिडेंस फील करते हो। डो नॉट पिक अ थिंग दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ, विच एसेंशियली अगेन डज नॉट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर 100% कॉन्फिडेंस। एटलीस्ट 70-80% तो
होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिकॉल, नॉट जस्ट फेक कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है वाली फीलिंग नहीं चाहिए, बेस्ड Okay. ऑन एविडेंस। तो आने वाले I'm 5 दिन अब talking जो हम about my टेस्ट study देंगे, purpose, sir. आने वाले 5-6 दिन जो टेस्ट देंगे उसमें अब उन चीजों को कवर करना शुरू करो। आप कुछ Okay. बोल रहे थे? Actually, I was saying that I am going to study economy and history, and with that, I will give the test of history. अभी मुझे बताओ, आपको ये 3 घंटे का टेस्ट देने से क्या समझ आई? Sir, my geography also needs certain additions. When I worked hard in the last 1 week on my polity, so polity is become tougher. So by studying, it will give me the result in the next week. So answer, as you suggested me yesterday, that I should give the test with the calm mind and only try to solve 50 questions. So with तो a आपको stable समझ mind, आया sir. कि आप जो 100 में से अगर करके भी कर रहे थे और 50 पे भी इतनी बुरी हालत हो रही है, तो आपको एक्चुअली डेप्थ में पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है। Yes, sir. I फिर will add आज it. आज शांति रही थी? हाँ सर, आज शांति ही थी, आराम से टेस्ट दिया था। बस इकोनॉमी में थोड़ा सा था, बट था कि नहीं आता है, फिर भी सर ने एक दिया है मैसेज ग्रुप पर कि स्टेबिलिटी बनानी है, कितना आता है वो नहीं देखना है, बस स्टेबिलिटी से लिखना है। सो एक्चुअली व्हेन आई Thank you for स्टार्टेड द reflecting on इकोनॉमी, that part. Thank you for reflecting on that part, because that was actually the key part that was supposed to be established today. So not यस essentially the fact that marks कितने अच्छे आए हैं, but stability on what you know, but understanding what you don't know and actually trying to work on that. यस, Good it is. Good. Thank you कोमल। आगे अब और बेहतर थैंक यू पढ़ना सर। शुरू करो। जितनी गलतियां हो रही हैं उनको कवर अप करना शुरू करो, जिन भी एरियाज में वीक हो उनको अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू। यस, थैंक यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू। बात करेगा कोई मेरे? अरे कैसे हो रोहित भाई? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी भाई। हाय संगीता, आप सर। डिस्टर्ब हो रहे हो तो वॉल्यूम कम कर सकते हो बच्चे, इफ समवेयर यू फील द रेलेवेंसी इज नॉट फॉर देयर फॉर यू। ओके, टोटली अप। हाँ जी रोहित। Actually, I gave the mock right, so it is like I have left few chapters. Like one chapter is तो मैंने पूरे ही छोड़ा हुआ है, मतलब अब वो मैं कर नहीं सकता, like कौन सा? forex। ठीक है। तो आज जब मॉक दिया तो 14 मार्क्स का forex आ गया था, ठीक है। आशीष वाला फंडा हुआ है। हाँ, तो फॉरेक्स ही छोड़ के 14 गए थे हम। तो 14 मार्क्स का forex आ गया, एंड लाइक और दो मैंने थ्योरी चैप्टर में कर नहीं पाया क्योंकि कल परसों में मैं टाइम नहीं हो पाया, तो मैंने दो नहीं किया, तो वहां से भी दो आ गए, चार चार के। इट वाज लाइक 70 आउट ऑफ 100, 22 मार्क्स वाज लाइक आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड ओनली, मतलब। चलेगा तो चलेगा, लेट्स नॉट इवन कंसिडर दैट। जो नहीं किया था वो आ भी गया, हाँ, तो लेट्स नॉट कंसिडर तो दैट। 78 में आई गॉट 55। दैट्स रियली नाइस। एंड ये कितनी देर में खत्म हुआ था? बट एग्जैक्टली दैट इज द थिंग कि मतलब होना चाहिए था 2 घंटे में, बट मेरे को अराउंड 2 आवर 35-40 मिनट्स लगे, तो स्पीड पे क्योंकि काम मेरा करना बहुत जरूरी नो है। दैट इज दैट वन पॉइंट इज देयर कि मैं पीछे गया था देखने के लिए, चेक करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट, मतलब मेरा जैसे लाइक मैंने कुछ गलत किए थे तो मैं फिर से पीछे गया तो उसको चेक किया, तो मैंने सही किया उस टाइम जाके, तो ओके। वहां वो सब सही किया। बट मुझे लगा सजेस्टेड आंसर में कुछ कुछ आंसर मतलब मेरे सही है, बट वो लोग ने जो स्टेप्स करे वो शायद अलग तरीके से किया है, मतलब जिस तरीके से मेरे टीचर ने करवाया है उस तरीके से वो लोग ने नहीं किया है। एट द एंड द आंसर इज नॉट द करेक्ट, तो मैंने उसमें मार्क्स भी नहीं दिया, मैंने उसमें मतलब जितना तक स्टेप्स था उतना का मार्क्स दिए। तो लाइक आई गॉट 50, तो एमसीक्यू में तो आई गॉट 28 आउट ऑफ 30, तो वो तो ठीक था क्योंकि दैट इज नॉट, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कल ही एक जो किया उसी में से आ गया था, तो इट इज लाइक ठीक है। बट बाकी जो था उसमें इट्स लाइक दैट, और मेरे को यही डर है कि फॉरेक्स इस बार भी ज्यादा आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, तो क्योंकि अब फॉरेक्स तो को मेरे पास छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अब टाइम है नहीं, तो कैसे करूंगा इतना। बाकी के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया तो फॉरेक्स को करना शुरू करते हैं। तो फॉरेक्स अगर आएगा, मान लो अगर आ गया 10 मार्क्स का, तो 10 तो सीधा गए। हाँ, क्योंकि इस बार ऐसा था कि मतलब मैं जो एक क्वेश्चन छोड़ रहा था उसके अलावा, मतलब लाइक आई चोज वन, मतलब जो मैंने क्वेश्चन पिक किया था उसमें एक पार्ट फॉरेक्स का था और एक पार्ट मतलब दूसरा का जो मुझे आता है, मुझे वो करना ही था। तो मैं अगर वो नहीं करता तो मतलब मेरा वो मार्क्स भी जाता और मेरे को फॉरेक्स छोड़ना ही पड़ा, तो इसलिए मेरे को वहां से मार्क्स कट रहा है। इट इज लाइक दैट कि मतलब चलो एक फॉरेक्स बार फॉरेक्स तो को छोड़ते हैं, हम बाकी की बात करते हैं। फॉरेक्स बाद की बात है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज यू अटेम्प्टेड 78, वो 78 हाँ, करने में टाइम ज्यादा लगा। करेक्ट। एमसीक्यू में थोड़ा टाइम लगे क्योंकि एमसीक्यू में वन थिंग वाज कि मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, उसका मतलब उसमें था, मतलब उसको एनालाइज करना था, बट मैं खुद ही आंसर निकालने लग गया उसको। So that's okay. I think you just need a bit presence of mind. Otherwise मैं ये यस कहूंगा यस। कि बहुत ज्यादा आपने एक्स्ट्रा टाइम, essentially 30 मिनट आपके ज्यादा गए हैं। 30 हाँ, नहीं, 20 मिनट कह सकते हो मोटे मोटे, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। यस यस, और 22 पे थोड़ा अगर बीच में, आप बट बोलो तो बट 22 पे 22 मार्क्स का आपका जो छूटा है उसके लिए हार्डली आपको 35 मिनट्स और होने चाहिए थे। उस मुताबिक देखो तो आपने हार्डली 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए,
not really as यस bad, not really as सर। bad. बट सर मुझे तो डर लग गया सर, फॉरेक्स आ गया तो फिर मैं तो मतलब, क्योंकि मैं तो पैनिक हो गया था एग्जाम के बीच में बहुत ज्यादा, मेरे को तो वही कैसे तो होगा नहीं क्योंकि होना था लाइक। आज। एक बात सबसे पहली क्या बताई थी मैंने, अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी और वो आ जाए तो आपने उसको देख के साइडलाइन कर देना, उस पर तो सोचना भी नहीं है। आ जाएगा तो क्या पता ही है कि तैयार नहीं किया, आ सकता है, तो उसको तो यस सर। देखना ही नहीं था। यस ये सर। टेस्ट का पर्पस ही अंडरस्टैंडिंग था, ये टेस्ट का पर्पस पैनिक नहीं था। यस सर तो बट कोई बात नहीं, एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव टाइम, मैनेज हो सकता है, विल डिस्कस अबाउट दैट, बट अदरवाइज यू हैव डन गुड इन अ वे। सर एंड व्हाट अबाउट द मींस द फॉरेक्स, शुड आई कंटिन्यू नाउ, अभी करना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि मेरे को ऑडिट में थोड़ा, अभी मेरे को तो मेरा ये प्लान है कि अभी आने वाला टाइम में आई विल डू एफआर एंड ऑडिट टिल 15th, मतलब 15 तारीख तक करूंगा, एंड देन आई क्लियर आप फॉर कितने कितने आवर्स अभी फेच कर रहे हो? 10 11। आशीष, फॉरेक्स खत्म करने में कितना टाइम लगेगा आशीष, ईवा? सर एक दिन तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह में ही लग जाएगा, और नेक्स्ट डे आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हो सारे, तो 2 दिन लग जाएंगे मतलब। टोटल 2 दिन? हाँ। तो दोस्त रोज दो के दिन दो तो हाँ। घंटे, रोज के 2 घंटे पकड़ के चलो, चाहे तो एक ही बार में खत्म कर दो, दैट्स अप टू यू, अदरवाइज 2 घंटे पकड़ के चलो रोज के। वो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने आप को, ये सोच के खत्म करोगे तो एक्सटेंड करोगे टाइम को रोज। अगर आपने यस 2 दिन पकड़ लिया और खत्म कर दिया, द फैक्ट इज आप ओवरऑल नंबर ऑफ आवर्स अपने इंक्रीज नहीं करोगे, विच इज यस नॉट अ यस गुड करेक्ट। पोजीशन टू बी। तो यस ट्रू। उस 2 घंटे को रोज करने के लिए अपने ओवरऑल आवर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो, फालतू टाइम इधर उधर का जितना भी उसको रिड्यूस, दो यस दो यस। घंटे के हिसाब से करोगे, बाय 15th यू विल बी डन विद फॉर ओके सर, आई ट्राई दैट सर। एक मतलब ऐसा है कि सर मैं लाइक मेरा सिटिंग आवर्स तो मैंने बढ़ा दी है कि मैं बैठता तो हूँ, बट इट्स लाइक प्रोडक्टिव टाइम में जो 11 आवर्स जो बोल रहा हूँ, 10 11 आवर्स, इट्स लाइक कि जो जो मेरा जो वेस्ट टाइम है, इट इज नॉट लाइक कि मैं बैठ नहीं रहा हूँ, इट इज लाइक कि मैं जोन आउट हो जाता हूँ, मैं कुछ अलग सोचने लग जाता हूँ, लाइक मैं मतलब फोन आप, नहीं देखता हूँ मैं बट। बहुत सिंपल सा इसका तरीका बताऊंगा। गिव योरसेल्फ जस्ट वन एंड हाफ आवर टाइम, एंड दैट टू विद अ टारगेट, एंड जस्ट डू इट। आफ्टर दैट टेक योर 20 minutes ब्रेक, दैट इज ओके, बट फॉर दैट 1.5 hour इट शुड बी टारगेटेड ऑन अ सर्टेन टॉपिक, सो योर ब्रेन शुड बिकम अवेयर इनफ दैट 1.5 घंटे में ये खत्म करना जरूरी है। उसके बाद आप ब्रेक लो, अपने आप ब्रेन इधर उधर होता रहेगा, वापस आओगे, इधर उधर जा रहा है, आपको होल्ड करना पड़ेगा उसे। बट जितना कंप्रेस टाइम रखोगे, कम रखोगे, उतना कैपेसिटी ऑफ वेविंग योरसेल्फ विल रिड्यूस। जितना आप लॉन्ग, जितना ज्यादा लंबे सिटिंग्स दोगे, उसमें ब्रेन बहुत बार आपका जो है वो सर्कल्स में जाएगा ही जाएगा। सर ओके सर, ठीक है सर, वो मैं सोच रहा वन हूँ। एंड यस हाफ आवर इज अ गुड गुड स्पॉट। 25 मिनट, 1 घंटा नहीं बोलूंगा, हम लोग 3 3 घंटे, 4 4 घंटे बैठने वाले लोग हैं, तो 1.5 घंटा इज सर। समथिंग वेयर यू कैन वेरी इजीली मैनेज योर सेल्फ विद अ टारगेट ओनली, वेरी क्लियर टारगेट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये नहीं है कि 1.5 घंटा बैठे और उठ गए, 1.5 घंटे में टारगेट देना पड़ेगा, हर स्लॉट का पता होना चाहिए क्या फिनिश कर। सर अगर वो टारगेट नहीं होता है कंप्लीट तो फिर मतलब मैं तो करता हूँ। तो भाई साहब ब्रेक लो, उसके बावजूद ब्रेक लो और अगले के बीच में फोकस अपना इंक्रीज करो। इस बात का जहन में बार बार ये थोड़ा लगना चाहिए कि आपने पिछले में वे टाइम वेस्ट किया, अगले में नहीं कर सकते हो। यस सर। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लिया और एक्सटेंड किया, तो आप सेम हैबिट लूप में ही रहोगे। यस आपको सर। ये पता होना चाहिए कि 1.5 घंटे बाद आपसे आपकी बुक्स छीन ली जाएंगी, आपको 20 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, आप वापस आओ, फिर से बैठो, फिर से शुरू करो। यस सर ठीक। यस सर ठीक है सर, ठीक है करता हूँ। रानी लक्ष्मी भाई, एक चीज पूछ लो रोहित सर, आप कर लो, माइक ऑन कर लो। रोहित, तीन यस घंटे सर। के टेस्ट में व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द लर्निंग, व्हाट इज इट दैट यू फेल्ट यू वर फीलिंग गुड एट एंड सडनली इट्स लाइक कुछ इधर उधर हो गया? सर कुछ कुछ चैप्टर थे जो मेरे को लगा कि मतलब मैंने किए हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कुछ क्वेश्चन था जो मैंने नहीं कर पाया, मतलब गलत कर दिया, और कुछ कुछ तो मैंने ऐसे किया कि मतलब किया सही, बट इट वाज लाइक कि कुछ मिस्टेक्स रह गए, हड़बड़ी कर दिया, ज्यादा ज्यादा मतलब स्पीड पकड़ने के चक्कर में वो पीछे छूट, मतलब मैं रॉन्ग कर दिया वहाँ। बीट भी कैलकुलेशन तो नहीं था, मतलब फिगर ही गलत लिख दिया, या मैंने उसको क्वेश्चन को सही से पूरा पढ़ा नहीं। जैसे डिविडेंड के साथ मेरे को कैपिटल गेन को भी उसमें लेना था, बट मैंने सिर्फ डिविडेंड के एडजस्टमेंट किया, कैपिटल गेन का नहीं किया। किसी जगह में बोनस का वो करना था, यू वर नॉट बोनस को। स्टेबल बेसिकली, यू वर यस नॉट एज दैट इज द स्टेबल, मेन। यू वर वेविंग हियर एंड देयर, और साथ में आप कहीं ना कहीं जो कामली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बात बोली थी कि कामली चीजें करनी है, वो वो नहीं हो कहीं पाया। कहीं पे आपका स्ट्रेट अवे चल गया, खासकर एमसीक्यू में, क्योंकि वो भी आप कह रहे हो कि हाँ रिसेंटली आपने किया था, तो दैट इज अ लकी पार्ट इन अ वे। मीन्स मतलब वो एक चैप्टर मैंने कल पढ़ा, मतलब पढ़ा था तो मतलब सिमिलर नहीं था, मतलब हाँ कॉन्सेप्ट वही थे, मतलब सेम क्वेश्चन सेम नहीं थे, ऑब्वियसली एमसीक्यू क्योंकि मॉक था तो मतलब सेम टू सेम तो नहीं था, मतलब क्योंकि ये बट कोई स्टिल टीचर का क्लोज, था। हाँ एनी विच वेज, बट दैट इज वन पार्ट वेयर यू नीड टू वर्क। हाँ ये सर, तो कामनेस, यस एग्जैक्टली, तो पैनिक तो मैं पैनिक तो हुआ, एग्जैक्टली पैनिक तो हुआ। वो नहीं चाहिए। एक चीज हमेशा पेपर में ध्यान रखना, कोई भी पेपर हो, सभी के लिए है, इफ यू एंड अप लुकिंग एट अ क्वेश्चन दैट यू वेरी वेल फील कि ये तो हमने छोड़
छोड़ दिया था और ये आ गया, हमने सोचा था ये तो शायद नहीं आएगा। दूसरी बात, आपने कुछ देखा और आपके जहन में ही नहीं जा रहा है, यू मस्ट नॉट लेट योर ब्रेन बी बैंग्ड इनटू द वॉल। इन स्पाइट ऑफ दैट, जस्ट स्किप इट, मूव अहेड एंड ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट यू फील इज टोटली अंडर कंट्रोल। जब वो सब चीजें कर लोगे, 60, 70, 75, 80 मार्क्स का जब आप कर लोगे, 20 की फाइट ना रिड्यूस हो जाएगी। आपको ये पता होगा यू हैव रीच्ड टू द विन विन सिचुएशन, नाउ द 20 कैन बी मैनेज, इवन इफ इट्स 30 इट कैन बी मैनेज। बट अगर आप उस 30 की लेयर साथ में लेके चलोगे तो जो आपने 70 अच्छा करना है ना, वो भी नहीं होने वाला। वहां ब्लंडर्स करते रह जाओगे बहुत अजीब से तरीके से। या रानी लक्ष्मी भाई? मेरा तो लाइक टोटल 150 क्वेश्चंस थे, उसमें से 29 रॉन्ग गए, 6 स्किप किए मैंने। 29 जो रॉन्ग गए उसमें से 10 क्वेश्चंस रॉन्ग गए वो टॉपिक के जो मैंने पढ़ा नहीं था, फिर भी मैंने दिया बिकॉज दैट इज ओके, जस्ट। दैट इज ओके। और जो बाकी के 19 क्वेश्चंस जो रॉन्ग गए जो मैंने पढ़ा था उसमें से गए। सो जो 19 गलत गए वो क्यों गलत गए? वो सर डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चन थोड़ा, इंटरप्रिटेशन? हाँ, और ट्रिकी भी थे क्वेश्चंस, सो आई कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। मे बी इंटरप्रिटेशन इज डेफिनेटली मेरा वहां पे रॉन्ग गया। And in today's test, I have analyzed most important thing is that you must be active recall is very, very needed. You must maintain short notes. You must revise things. This has happened to me, like I was running out of time. So I started completing things very fast in the morning, like 5 a.m. to 2 a.m. I'm just having how many 7 hours, something I calculated, excluding all the time which I wasted. There I got to know like you have to create short, very needed. The things that you think that you can Need forget. to? Yes, sir. What did you say? You need to? You need to create short notes of things that you can forget. Immediately writing down whatever you are reading, it's very important. Active recall is one of the most important things that I did today and it has helped me a lot. ट्रिगर्स आपके होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही यही होता है, देज आर योर ट्रिगर पॉइंट्स, दे ट्रिगर एवरीथिंग एंड दे टेक यू बैक टू द मेन नोट्स। व्हाट एल्स? Yes. शांति थी वैसे? सर आपको सुनाती ना, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बोला रुक जाओ, सर से बात हो रही है, सर आने वाले हैं, सर आ गए, बाद में शुरू करना है सब कुछ। नहीं तो मेरा तो शांति का तो पता नहीं सर, आपकी भंग हो जाती आप नहीं, सुनते मेरी तो नहीं आवाज। भंग होगी, डोंट वरी। प्लस आई थिंक जूम में वैसे वो इतनी नॉइज कैंसिलेशन होती है, पहुंचती नहीं है यहाँ तक आवाज कोई भी। पर सर डिस्टर्बेंस तो बहुत था, मैंने मैनेज किया, पता नहीं Still, that is important ना। उस टर्बुलेंस में आप मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू डू नॉट नो ऑन वन फाइन डे व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर एग्जाम, आप एक्सटर्नल टर्बुलेंस छोड़ दो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टर्बुलेंस इज हियर। जो आउटर फ्रिक्शन है कई बार वो बहुत इरिटेटिंग हो सकती है, इतनी इरिटेटिंग कि आपको ये हो रहा होगा कि बंद करो सब कुछ, मैं टेस्ट दे रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम अ सिमिलर फ्रिक्शन कैन बी इनसाइड। सो बाहर के एनवायरमेंट के साथ तो अपने आप को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। अगेन आई टोल्ड यू, द मोर क्विकली you will start adapting yourself to such environments, such disturbances, such nuisance going around, the faster you will become more stable. उसको अपना background music बनाने की क्षमता पैदा करो, no matter what, except obviously some conflicts are going on, तो आप उसको नहीं avoid कर सकते, अब जाके आपको भी बीच में थोड़ा भाग लेना पड़ेगा। But then you have to get along it. मैं आज बैठा कुछ काम कर रहा था, हमारे पीछे गुरुद्वारा है, and it was very loud music. On a general day, sometimes I may feel a bit irritated about it. आज मैं जो काम कर रहा था, मैं इतना ज्यादा फोकस था, आई डिड नॉट रियलाइज कि 4 आवर्स तक वो चल रहा था। टेस्ट देते समय तो इन मुझे जस्ट माई स्टेट ऑफ फोकस, विदाउट द फैक्ट दैट इतना लाउड म्यूजिक था, इट जस्ट डिडंट बॉदर मी, बिकॉज आई वाज मोर कंसर्न्ड ऑन डूइंग व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन, क्योंकि मेरे लिए वो खत्म करना बहुत जरूरी था काम। तो जब आपका वो फोकस एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, अपने आप वो कैंसलेशन होनी शुरू हो जाती है। यू वर सेइंग समथिंग? यस सर, वैसे तो मैं भी टेस्ट देते समय थी फोकस, पर मुझे लाउड वॉइस बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लाइक आई डोंट इवन अटेंड फंक्शंस इवेंट्स बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूजिक। Get used to it. Yes, I Your life is just going to be filled with it in the coming times. I know sir. So better you get used to it. You will not be able to avoid anything in future. और कुछ? और तो क्या बोलूं सर। That's it. चलो, good, good. Hopefully the next test comes out to be better हाँ than सर, this one. एक फीडबैक देना था। ये जो टेस्ट आपने लिया ना सर, ये आप हर तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे कीजिए सर, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। इतना मुझे ऐसा लगा कि ये गेम है, मेरे को सब कंप्लीट करना है, फिर मुझे टेस्ट देना है। इट वाज लाइक सो नाइस, रिफ्रेशमेंट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्रीलिम्स लिख कर आई हूँ। अच्छी बहुत बात है, अच्छा। वही फीलिंग चाहिए। दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस, सो दैट यू गेट इनटू दैट फीलिंग so many times that it starts to become the normalcy of life, so that one fine day when you will be going for the exam, it will feel something that you have already done so many times कि कोई प्रेशर नहीं होगा, rather enjoyment होगा। वही हुआ, मुझे तो बहुत एक्साइट, मुझे ऐसा लग रहा है आज का काम सब कंप्लीट हो गया।
Good it is. Good. That's a good perspective you're keeping with yourself. Thank you. So, Thanks a lot. Kripa Sir. जी. Sir, I attempted 100, 30 MCQ, and then 70 subjective. I got 56, out of which MCQ में 22. ओके, तो बाकी 24 34 आपके जो हैं उधर आए हैं डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 70 Yes. विच इज Yes, sir. 50%. और मेरा एक वो कैलकुलेशन वाला तो हो गया, लेकिन और मेरा भी वो बेसिक छोटा छोटा छूट जाता है। मैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ शायद, कोई कोई क्वेश्चन में। Was it because you जैसे कि एक generally क्वेश्चन में don't read as clearly, or is it because when there is pressure you tend to read quickly? इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर आई फील। Okay. जैसे कि एक क्वेश्चन में पर मंथ था, लेकिन मैंने वो पर मंथ नहीं देखा और फिर वो करा और उसकी वजह से मिस्टेक हो गया। ऐसा कुछ हुआ था। Okay. Apart बाकी from तो that, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मैंने पढ़ा है उसमें तो ठीक ही लगा मुझे। but why 70 में से 35 क्यों है 34? अपार्ट फ्रॉम दैट किसी क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं गलत कर देती हूँ। मतलब किसी चैप्टर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट ऑल चैप्टर्स बट इन सम चैप्टर्स बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं लाइक आई डू द ऑपोजिट एंड देन मिस्टेक हो जाता How would you है। do the opposite? Because you have not done the chapter correctly, or is it something else? Probably there is always a I think possibility I that you didn't could give be the feeling enough confident time. already, but you actually are not as much ready with all the things. Yes, maybe I don't know. Come on, सोचना पड़ेगा बच्चा, यही तो इम्पोर्टेंट बात है जो समझनी है। आई डोंट नो कह के तो कहानी खत्म हो जाएगी। मे बी वो कॉन्सेप्ट अभी मैं गो थ्रू नहीं करती हूँ, क्वेश्चन करती रहती हूँ, इसलिए शायद ओके, क्वेश्चन। बट अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन सही तरह सॉल्व हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? नहीं? यस, बट डू यू थिंक यू वर नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स? बट इट इज अ न्यू क्वेश्चन ना, इसलिए तो जो कॉन्सेप्चुअली मैंने आप आज अप्लाई वो एप्लीकेशन नहीं कर पाए आप। या ओके, कॉन्सेप्ट के लिए एक्चुअली ऑन न्यू क्वेश्चन स्पेशली। न्यू क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे? ईवा आपसे बात करते हैं, आपसे न्यू करते हैं, उसके बाद न्यू आप जा सकते हो बच्चे। क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के अराउंड के थे सब्जेक्टिव आई एम में। रिसीविंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। कृपा जी, कृपा करके बताएं कि जो एरियाज में आप गड़बड़ कर रहे हैं वो गड़बड़ सिर्फ एप्लीकेशन की वजह से है, नए कॉन्सेप्ट की वजह से, या आप कुछ मिस भी कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन एप्लीकेशन करते वक्त वो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ना, तो चलेगा, ऐसा करते क्वेश्चन वक्त चलेगा। वो नया concept क्वेश्चन एकदम से कभी कभी आपको जो है वो थोड़ा ब्लैकआउट कर सकता है, दैट्स ऑल। बट जो आपको पता थे, दिख रहे थे, समझ आ रहे थे, उनमें क्या गड़बड़ हुई है? उनमें जैसे कि थ्योरी क्वेश्चंस में लाइक फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन था, उसमें मतलब वो डिस्क्लोज करना है पता है, लेकिन बस एक लाइन लिख के फुल मार्क्स नहीं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, फुल मार्क्स नहीं आता, उसमें वो डिस्क्राइब करना होता है, वो पॉइंट्स नहीं आ रहा था रिकॉल ठीक में। है, वो रिकॉल इशू है बेसिकली। ठीक है, यू आर इन अ वो गुड वाला प्लेस, था। ऑल्दो यू आर इन अ गुड प्लेस, बट यू नीड टू वर्क ऑन सर्टेन एरियाज। एप्लीकेशन का तो मैं ये कह सकता हूँ, द मोर यू ट्राई डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स, इट विल स्टार्ट इंप्रूविंग, बट रिकॉल इज वन पार्ट यू नीड टू Okay. डेफिनेटली वर्क ऑन। So I think I need to work on MCQ also, because 22 is average, not so बट good. एमसीक्यू के लिए बच्चा थोरो, सब कुछ थोरो पढ़ना जरूरी है। या एमसीक्यू एक का बार कोई थॉरो तरीका करना नहीं है। पड़ेगा सर, हाँ, उससे राइट, मेरा वो कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग हो जाएगा और वो एग्जैक्टली, एप्लीकेशन में भी एग्जैक्टली, काम आ जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी और राइट। एग्जाम्स में भी मेरा 22 से ऊपर कभी भी नहीं आया है MCQ में, इसलिए चलो फिर इसीलिए मतलब 22 मेन आया था अभी एग्जाम्स भी। में। हाँ, पहले 2022 ऐसे ही आता है, मतलब ठीक है, उससे चलो ऊपर एटलीस्ट नहीं आपने जाता। मेंटेन किया, कंसिस्टेंसी रखा, अगले वाले में और इम्प्रूव करना है। ओके, थैंक यू कृपा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ईवा राठी 3 घंटे बैठा गया। ईवा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। मतलब लास्ट की 1 आवर थोड़ा हुआ मेरे को दिक्कत, बट मैं क्या, अब तो करना ही है, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद रेस्ट कर लिया था? हाँ सर, उसके बाद तो रेस्ट ही किया मैंने। ओके ओके, गुड। क्या कंडीशन है? सर टेस्ट में MCQ में सर 24 आए हैं आउट ऑफ 30। गुड। तो 3 MCQ गलत गए हैं। और ये बाकी 3? मतलब उस इंडेक्स से जो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब स्मॉल इंडेक्स है, आप ऐसे ही थोड़ा पढ़ के और बस साइड कर देते हो, वो तो वाले में तो मेरे फिर कहानी खराब हो जाएगी ना, याद ही नहीं आएगा। वही उन्हीं इंडेक्स में मतलब मेरे MCQ गलत गए हैं। ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें सर 47.5 है आउट ऑफ 66। वाओ, वेरी गुड। उसमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत गए हैं, एक कंसोलिडेशन का और एक 115 का। 115 का गलत गया है क्योंकि उसमें ना जो क्वेश्चन मेरे मतलब आज एग्जाम में आया, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेंज हुआ है, तो मैंने ओके। क्या किया कि केवल वीडियो देख ली सर की, उसको सोल्व नहीं किया, हम्म। और वही आज मेरे एग्जाम में आ
गया, तो मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चला, तो मैं जो भी हुआ मैंने कर दिया। पहली चीज तो अफसोस हुई होगी। सर बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि जब मैंने आपने एक उसमें, क्वेश्चन देखा हो, किसी ने करवाया और आपने सॉल्व करके ना देखा हो, इससे बड़ा अफसोस क्या होगा कि अगर किया होता तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक जाता सारा। यस सर, दूसरा ये कि उस इंडेक्स में मैंने सारे क्वेश्चन लिख के किए, यही क्वेश्चन लिख के नहीं किया और वही आ गया। गुड, यू आर वेरी लकी। कुछ ज्यादा ही। ओके, और बाकी दूसरा सर एक क्वेश्चन में कंसोलिडेशन मतलब, वाला, डिड यू से कंसोलिडेशन वाला ये था सेम क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये ये था जो 115 वाला था। हाँ, ओके, कंसोलिडेशन में क्या कंसोलिडेशन हुआ? में सर थर्ड स्टेप में मतलब मैंने ज्यादा मतलब गलती कर दी उसमें, एक्चुअली डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर दिया मैंने, तो उसकी वजह से फिर आगे का फिर सारी सारे कहानी गलत खराब हो हो गई। गए। हाँ जी। तो गलत कैलकुलेट कर दिया का मतलब कृपा वाला कैलकुलेटर था? नहीं नहीं नहीं, मतलब उसमें ये था कि जो फेयर वैल्यू थी ना वो साल के बीच में दी हुई है, मैंने क्या किया उसको कंपेयर कर लिया डे वन की अमाउंट से, तो वो फेयर वैल्यू का चेंज गलत आ गया, तो वो डेप भी गलत हो गया। गुड, वेरी तो गुड। कुछ ज्यादा ही गलती कर दी सर आज। नहीं, बट स्टिल आपके मार्क्स स्टिल कॉम्बिनेशन में काफी सही आए हैं। मतलब वही, वो फिर बाकी क्वेश्चन ठीक गए हैं, वरना तो फिर गलत ही 46 and था। 22, you are at 68, 24 हाँ, and 46 you said ना? 71.5 आउट ऑफ 96 सर। मेरे को तो पापा से डांट पड़ी है कि वो क्यों गलत गए। ठीक है, चलो, कोई डांटने वाला होना चाहिए, मैं डांटूंगा नहीं। स्टिल आई विल से दिस इज प्रीटी गुड, बिकॉज अगेन आवर पर्पस वाज नॉट पीक परफॉर्मेंस, आवर पर्पस वाज मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दिस इज वेरी गुड, और इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स एंड देन वर्किंग ऑन देम, सिंपल एज दैट। पापा तो कहेंगे 100 मार्क्स लेके आओ, +2 में बैठी हुई हो, अभी भी 100 मार्क्स पूरे करके आओ। कौन कोई बात बताए नहीं, सर उनको। आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। यस सर। गुड, प्रीटी गुड, अच्छा लगा मुझे, और आपने हिम्मत रखी 3 घंटे, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके बाद अच्छा 1 घंटे का रेस्ट लगा है मुझे। चलेगा चलेगा, कोई बात। अरे राज यार, पहले वाला अच्छा लग रहा था। राज अग्रवाल, पहले वाला मोड अच्छा लग रहा था भाई। ब्लैक्ड आउट एकदम, बीच में से शक्ल आती हुई जैसे पूजा सिंह की आ रही है। सर वो आंधी तूफान आ गया तो बिजली बिजली लाइट चली चली गई थी? हाँ नहीं भाई, वो मोड अच्छा लग रहा था, ऑन करो। कर देता हूँ अब। ठीक है सर, अभी परफेक्ट है। बहुत बढ़िया लग रहा है, कसम से एकदम ड्रामेटिक फीलिंग आ रही है। ठीक है, हाँ, थैंक यू और सर, यही बैकग्राउंड का कोई रखूंगा। फीलिंग नहीं है, दिस इज एक्चुअली गुड। सब पढ़ाई कैसे करूँ, किताबें नहीं दिखा। वो पूजा स्टाइल में आपको लैंप रखना पड़ेगा। ठीक सर। तो क्या राज, आपने टेस्ट नहीं दिया ना मैंने तो आज? दिया आपका नहीं, तो तो मैं परसों आपका तो दूंगा। फोर्थ को है, ठीक है, बट अदरवाइज कोई आपने छोटा टेस्ट दिया था कि नहीं आज? मैं सर रोज रोज छोटा छोटा टेस्ट 30-30 मिनट का रोज, मतलब कम से कम आप समझ लीजिए 3-4 राउंड तो हो ही जाते हैं सर। ओके। और रैंडम वाला, मतलब ऐसा, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं, रैंडमली कोई सा भी उठा लेता हूँ और दे देता हूँ। एंड हाउ इज इट गोइंग? हाँ सर, अच्छा हो रहा है। बस मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम इसमें ही आ रहा था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाने की वो है, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ऐसे कैलसी पे तो फटाफट हो जाता है, लेकिन हाँ लिखते हो अरे तो भाई, सब वहां पे तो सारे सब कॉमन। सामने लिख के रखना पड़ेगा ना, तभी तो हमेशा कहता हूँ कि वो ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, वो स्पीड वहीं से ही आएगी। चलो कोई नहीं, गुड दैट यू वर्किंग एवरी डे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। है कोई ज्ञानी इंसान मेरे से बात करना या मेरे को ज्योति से पूछ, ज्योति क्विकली मुझे बताएगी। ज्योति बच्चा, आपका कैसा गया? हाय बच्चा, हाउ आर यू? गुड सर। कैसा गया टेस्ट? सर क्यों? मैंने 2 लिख के दिए थे, अकाउंट्स का 1 आवर में और 2 आवर में इको का। 1 आवर का अकाउंट्स का और 2 आवर्स इको का? हाँ, इको का दिया था, उसमें 84 राइट थे एमसीक्यू और 16 रॉन्ग। ओके, और दूसरे में? अकाउंट्स में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई एक क्वेश्चन में, और एक में मतलब लिखना कुछ और था, उसमें मैंने 55 लिख दिया 2 बार। ओके, कैलकुलेशन उसमें सही थी, लिखने में गलती हो गई। टोटल कितने थे और कितने ठीक हुए? टोटल एक तो अकाउंट्स में एक तो 15 मार्क्स का था, और 2 10-10 के थे, और एक 5 मार्क्स का था। ओके, और कितने आपके गड़बड़ हुए? मेरे 2 गड़बड़ हो गए कैलकुलेशन वाले टाइम, वो सारे सही थे। और आपके लिए अच्छा नहीं हुआ? 100 में से 100 सा चाहिए थे आपको? क्या? 100 में से 100 वाला चाहिए था आपको? नहीं सर, कैलकुलेशन में मतलब कितने भी क्वेश्चन कर लो, लास्ट में यही गड़बड़ हो रही है सब। कैलकुलेशन कहाँ पे? कैलकुलेटर पे? हाँ, कृपा वाली मैं सबके पास वापस प्रॉब्लम है। टेस्ट देने के बाद में फिर सारे क्वेश्चन देखती हूँ, आंसर देखती हूँ, फिर वापस कैलकुलेशन करती हूँ उसी टाइम, फिर वो आंसर मैच हो जाता है। तो थोड़ा शांति से करो, और उसको डबल हाँ चेक। आप रिव्यू करते होते हो अपने फिगर्स को? चेक की ऑप्शन होती है ना, चेक करते हो? हाँ, तो चेक करने से पता चल ही जाएगा। बट वैसे आप तो क्या, करती हूँ जब चेक। क्वेश्चन सॉल्व करते हो साथ के साथ चेक करके देखते हो स्टेप्स को सारे के सारे कैलकुलेटर में? हाँ, वो तो देखती हूँ, फिर? फिर भी पता नहीं कैसे हो रही है, पर वापस सेकेंड टाइम देखती हूँ तो वो सेम हो जाते हैं आंसर। आप सेकंड टाइम देख लिया
क्या करो बेटा? तो आज तो टाइम ही नहीं मिला थोड़ा। कोई बात नहीं, फिर स्पीड पे काम करेंगे, बट दिस इज स्टिल गुड, दिस इज स्टिल गुड। आई वुड नॉट से दिस इज बैड, दिस इज रियली गुड। थोड़ा सा स्पीड पे काम करेंगे, स्पीड पे काम करेंगे तो अपने आप एक्स्ट्रा टाइम आएगा, तो दोबारा रिव्यू करने का चांस मिल जाएगा। बट यू हैव डन गुड। ऐसे क्यों बोल रहे हो अच्छा नहीं हुआ है? सर इको में भी तो 16 रॉन्ग हो गए 100 में इसीलिए। से 16 हुए ना बेटा रॉन्ग। हाँ हाँ, तो इतना बुरा नहीं है। जो सर। 16 है वो आपको ये बताने के लिए है कि वो एरियाज वीक हैं, उन पे काम करो। सारे ठीक हाँ हो जाते तो आपको यही नहीं पता चलना था वीक एरियाज कौन से हैं। वीक हाँ एरियाज है इसीलिए तो नहीं हुआ, सिंपल। उन एरियाज पे काम ओके सर। काम करना शुरू कर दो, ठीक है? थैंक यू सो मच। एंड डिड इट हेल्प यू? ओके डिड इट सर मैं हेल्प यू इन बता एनी दूँ वेज? डिड दिस टेस्ट हेल्प यू इन एनी वेज? क्या? इस टेस्ट से कोई हेल्प हुआ आपका? यस सर। सर अभी वो 1 आवर वाला भी हुआ था ना, उसमें भी बहुत हेल्प हुआ था। ओके, दैट्स तभी आज 3 घंटे वाला और अच्छा हो गया। हाँ वो, हाँ ये ज्यादा अच्छा हुआ। अभी देखो बोल रही है अच्छा हो गया, हाँ? आपने बोला ना इसीलिए लगा कि नहीं ठीक नहीं, है अच्छा अच्छा हुआ हो है, गया। अच्छा हुआ है। कृष्णा दीदी से ठीक है। पूछते हैं, बताओ कृष्णा, 100 में से 16 गलत हुए हैं, 50 में से 2 गलत हुए हैं? सॉरी, 100 में से 100 में से सिर्फ 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं इको के, और 50 वाले में से 2 गलत हुए हैं। इज इट ए गुड प्लेस टू बी? इट इज अ वेरी गुड प्लेस, है ना? मतलब एंड शी इज फीलिंग मस्त कि मेरा जाओ अच्छा फिर, नहीं हुआ है। और सब पार्टी वार्टी करो, मतलब रिवीजन करना, ऐसे ही समझ लो कि हो गया, फिर हाँ, रिवीजन करो, अभी के लिए चिल करो, अच्छा मस्त हुआ रहे। है बेटा, दिस इज गुड। जस्ट वर्क ऑन द वीक एरियाज, दैट्स इट। ओके थैंक यू कृष्णा जी, बताइए थैंक यू मुझे। सर। माय प्लेजर बेटा। यस सर। चलो बस मेरे जाने का वक्त हो रहा है, बोलो। सर मैं ऐसा तो मेरा लाइक जो मेरे मैंने क्या किया कि जैसे कि ईबीई है, एम्प्लॉय बेनिफिट, तो उसमें मैंने जो डिफिकल्ट पार्ट है, पोर्शन है, उसमें ज्यादा फोकस किया, तो जो उसमें से एकदम इजी है ऐसा क्वेश्चन आया तो वो मेरे से नहीं हुआ। वाह। फिर जो सारे पूरे गलत है तो उसमें मैंने, क्योंकि अब शायद आईसीआई पूरे ना दे, मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे उतने, मैंने तो उसके लिए थोड़ा ऐसा प्रोविजन रखा है कि 1-2 मार्क्स अब मैं काट ही लिए, चाहे सही हो तो भी। सो व्हाट इज द और स्कोर? कंसोलिडेशन में भी मेरा ईवा के जैसा सेम मिस्टेक हुआ था, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना था, मैंने 1 साल का ही लगाया, ये तो उसकी कैसे वजह से फिगर्स गलत कैसे उठाते हो आप लोग, मुझे ये नहीं समझ आती। फिगर्स, मतलब वो तो कैलकुलेट ही करना था, तो मैंने 1 साल का ही कैलकुलेट किया। अभी एक्विजिशन और कंसोलिडेशन में 2 साल का फर्क था, तो वो बाद में कंसोलिडेटेड इक्विटी में सही हुआ, पर जो अलोकेशन था रिजर्व्स का उसमें नहीं हुआ, तो उस वजह से पूरा क्वेश्चन गलत। बाद और में मैंने कैसे तो ठीक खुद हुआ? को, बाद में हाँ, 2 साल कैसे उठा लिया आपने? तब वो था इधर कैसे? इसमें 2 साल लेना है ऐसा। डेप्रिसिएशन का तो मैंने जब रिव्यू किया, पेपर एनालिसिस किया, तब मुझे पता चला कि ओ इधर मैंने 1 साल का ही लिया है। ओके, यू नीड टू बी वो मोर कॉशियस एंड मोर अवेयर। हाँ, और फिर एनसीआई जो एक्विजिशन डेट की लेनी होती है गुडविल कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें मैंने कंसोलिडेशन डेट की ले ली, तो ये दूसरी मिस्टेक अनकॉन्शियसली, या मतलब ऐसा ग्रॉसली नेग्लिजेंट लगा मुझे। मिसकंडक्ट हो गया बेटा। हाँ। सीए बनने के बाद ऐसी गलती हुई तो फिर भारी पड़ेगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस। एमसीक्यूज में मेरे 2 गलत थे, हम्म। तो 26 आउट ऑफ 30 है उसमें, हम्म। और बाकी सब में मैंने बहुत मार्क्स काटे, तो एमसीक्यू फिर में दोबारा बताओ, 30 में से? 26, 2 दैट्स गलत है। गुड, दैट्स रियली गुड, दैट्स गुड। यस। ओके। और फिर बाकी में तो मैंने बहुत मार्क्स काटे, तो फिर टोटल मिला के 53 हुए, और दूसरी मेरी मिस्टेक्स भी कोई थी ऐसे ऐसी। क्वेश्चंस थे जो आपने छोड़ दिए थे कि यही नहीं? नहीं, मैंने छोड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा था थोड़ा, तो मैंने वो थियोरी पार्ट किया नहीं है, एथिक्स और वो सब, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया उसमें, पर मैंने उसमें मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा, मैंने सही से नहीं So लिखा। tell me the areas that you really need to work on. एक तो ये मेरी ही है कि मुझे फोकस से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन भी, और वाइल सॉल्विंग ऑल्सो आई हैव टू कीप इट इन माइंड कि इसमें ये बारीकियां थी, तो ये ध्यान रखना है इसमें, सो एज यू सेड कि राइट इट डाउन। आप मछली की आंख नहीं देखते हो ना? हाँ, मछली की आंख नहीं देखते हो और पेड़ पे बैठा पक्षी भी नहीं देखते हो। सॉरी। मछली की आंख नहीं देखते हो और पेड़ पे बैठा पक्षी भी नहीं देखते हो। ओ। सब कुछ देख रहे होते हो, जो देखना जरूरी है उसको गड़बड़ कर जाते हो। ये योर हाँ। 53 आई थिंक इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्लंडर्स। यस, आपके ये 53 शायद 73 हो सकते थे, आपने ब्लंडर्स काफी ज्यादा किए हैं। बहुत की है, मतलब वो कंसोलिडेशन में सिर्फ 2 मिस्टेक हुई, तो मैंने फिर उसमें 14 में से 3 ही दी है, तो शायद मेरे 10 मार्क्स तो वही आगे सीधा। 12 मार्क तो उधर ही बढ़ जाते हैं। और एंड वो ईबीई वाला, तो उसमें तो एकदम एकदम इजी क्वेश्चन था, लाइक इट वाज कैश मार्क्स।
मार्क्स, तो वो मैंने नहीं किया तो 4 मार्क्स उसमें चले गए। बच्चे ऐसे पेपर को बोल के आते होते हैं कि लड्डू पेपर आया था और मार्क्स आए नहीं। नहीं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, चेकिंग स्ट्रिक्ट किया होगा। चेकिंग स्ट्रिक्ट किया होगा, बस यही याद नहीं आता कि हमने क्या क्या गलत किया था, क्योंकि हम देखते नहीं है ना वापस फिर उसे। मैं हम तो देखती नहीं, मैं कैसे सजेस्ट देखोगे ना, तो नहीं आपके हाथ से जो देखूंगी। चीज गई उसे आप कैसे देखोगे, वो तो बाद में फिर मंगाओगे तो ही पता चलेगा। मैंने मंगवाए भी नहीं, मैं देखती भी नहीं, गया तो गया, हाँ तो बाय। बेटा फिर इसका मतलब है आप ब्लंडर्स करते आ रहे हो। पर अब तो पता चला ना कि मतलब खुद तो टेस्ट दे तब तो देखते ही है ना, तब का नहीं देखते, फिर वो टेंशन हो जाता उसको देखने का फायदा भी नहीं है, वो गया। है। वही वही उस तो, इसीलिए वो नहीं देखते, उसमें यही सीधा देखते हैं। 4 महीने बाद बात बनती है। हाँ, इसीलिए तो नहीं तो आप मंगवाते, मैं ब्लंडर्स करने देखती बंद हूँ। करो बेटा। हाँ, वो हो जाए, सेकेंड मॉक टेस्ट सीरीज छाओ। श्योर हो? क्या करोगे ऐसा? तो इस बार गलती की है, वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है वो दोहराएंगे। तो फिर अच्छा कैसे होगा? और जो इजी टॉपिक्स है उसको भी ऐसा इम्पोर्टेंस देना है, नेग्लेक्ट नहीं करना स्नेहा कुंदरनाथ खाना खा लिया है ना? स्नेहा कमाई कौन है कि नहीं? नहीं कनेक्ट नहीं नहीं, बात करो कृष्ण। व्हाट रियली वाज अ रिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस स्पेसिफिक टेस्ट? है कि आई नीड टू मतलब वही कि जो मैं पढ़ती हूँ तो ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना भी चाहिए, और क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन, क्वेश्चन को हाँ, और वाइल सॉल्विंग इट ऑल्सो, कि आप या तो उठा फिर लेते हो, क्वेश्चन लिखते पेपर कुछ हो में, उठा कुछ लेते हो। हाँ, क्वेश्चन पेपर में साइड में ये नोट कर देना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। और तो बस लर्निंग तो ये कि छोटे टॉपिक्स को ऐसा नेग्लेक्ट करो, ऐसा नहीं करने का, उनको अच्छे से इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि ये कैश मार्क्स होते हैं अगर ऐसा टॉपिक्स आ जाए, और फिर लाइक उसे पैसा गवा देना इज नॉट वर्थ इट। आप अक्सर बातें बोल के भी भूल जाते हो कि आपने किसी को कुछ बोला था और आप बाद में कहते हो अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी ऐसा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, पर ऐसा तो नहीं होता कि मैं बात करती हूँ। गजनी इफेक्ट है आप पे ना? सॉरी। गजनी इफेक्ट है आप पे, हाँ, थोड़ी बहुत। है ना? वही पेपर में कर रहे हो आप। अब और नहीं ध्यान होता। से पढ़ा करो, हाँ। जल्दबाजी में नहीं। चीज को वापस जाके देख लो, इसकी बजाय कि सोच रहे हो। और प्लीज व्हाइल कैलकुलेटिंग इट ऑल्सो, वो पॉइंट पे फिर एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली वापस हाँ। रेफरेंस कर लो, वो बहुत जरूरी है। मैंने इसीलिए एक सिंपल सा तरीका बताया था, जब भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो एक साइड में एक और मार्जिन रखो, उसमें आउटपुट्स लिखते जाओ अपनी, बीच में हम्म। से कई बार जब वापस जाके वो पिक ही नहीं होती है। हाँ। अगर आप आउटपुट्स लिख रहे हो तो अपने आप वो हेल्पफुल हो जाता है। यस। ठीक है, और कुछ? बस, और स्नेहा का माइक कनेक्टेड है, शायद स्नेहा जी, वॉल्यूम कम होगा। हाय स्नेहा, स्नेहा स्नेहा देख, स्नेहा बोलो। हाँ जी, आपको ही बुला रहे थे हम। कैसे हैं आप? सर लेक्चर सुन रही थी थोड़ा। अच्छी बात। कैसा रहा आज? सर ठीक था, वैसे अटेम्प्ट नहीं हो पाया सर, वही। कितना अटेम्प्ट नहीं हुआ? और सर 20 मार्क्स का नहीं हुआ अटेम्प्ट। स्पीड इश्यूज थे या बीच में से कहीं पे नहीं सर, चैनल चेंज हो गया था? स्पीड इश्यूज ही थे, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग बहुत स्लो लिखा, फिर पहले आप मेहंदी लगा रहे थे? सर एक्चुअली वैसे हुआ, वो नीट हैंड राइटिंग से स्टार्ट किया और पूरा लेट लेट के लिखा 2 मार्क्स के लिए। आपका पहला आधा घंटा गोल्डन पीरियड होता है, वो गोल्डन पीरियड के बीच में गोल्ड से लिखना नहीं होता है। आपको उस पीरियड के बीच में ब्रेन को पूरा एकदम स्पीड पे रखना होता है। आपको एक चीज समझनी है, लास्ट में जाके बताओ स्पीड कैसी हो जाती है और राइटिंग कैसी हो जाती है। तो फुल स्पीड ऑन था और करेक्ट भी हुआ वो क्वेश्चन। नहीं, लास्ट में राइटिंग कैसी हो जाती है? राइटिंग बहुत खराब थी सर लास्ट। The only thing that you're supposed to understand is आपने जो लास्ट में इतना बुरा किया है उसमें हो सकता है लेजिबिलिटी भी ना रहे, उसकी वजह से मार्क्स चले जाएं कहीं पे। आपने जो शुरू में पेरो दिया है वहां मार्क्स मिल जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे। You're supposed to maintain कंसिस्टेंसी। तो अभी जो भी टेस्ट करते हो, जब भी प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, सजा के नहीं करना है। एक बेसिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो लेजिबल रहना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से लिखने से, सुंदर सुंदर लिखने से बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर पे, ट्रस्ट में नहीं जाता है। उसको आपसे भी ज्यादा जल्दी है। बस उसको कीवर्ड्स ढूंढते हैं ना सर, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं बेटा, लेकिन उसी के साथ उसको जल्दी जल्दी चेक करना है। उसको नहीं मतलब है कि आपने कितना सुंदर लिखा है। अगर आप सुंदर स्पीड पे लिख पा रहे हो बहुत अच्छी बात। अगर आप अपनी स्पीड गवा रहे हो और खुशी उसको देने की कोशिश कर रहे हो शुरू में, तो आप गलत कर रहे हो। उसको नहीं चाहिए खुशी आपसे। सर एक्चुअली ऐसे नहीं करती मैं। अभी क्या हुआ था कि मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं तो मैंने रख लिया था कि मैंने 80% सिलेबस कंप्लीट किया है करके। तो वो आपने मुझे लगा 80 था कि आपने दिया कितने का टेस्ट? सर दिया तो 100 मार्क्स का है, लेकिन हाँ, उसमें से 20 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं किया है। तो फिर 100 मार्क्स का कैसे दिया है? मतलब टाइम 100 मार्क्स का, 3 आपने आवर्स 3 आवर्स में 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। हाँ, तो ऐसे करेक्ट बोलो 100 का अटेम्प्ट थोड़ा किया है। तो करेक्ट आपने बेसिकली जो 80 मार्क्स का ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए था, वो आपने 3 घंटे में खत्म किया है। हाँ एक तो स्पीड पे तो काम करना पड़ेगा बेटा। बहुत दूसरी सर। चीज प्लीज, ये किसी को खत लिखोगे तो अच्छे से लिख देना, ऐसे सुंदर सा चलेगा, ठीक है? सर लेकिन आपने जो रैंडम टेस्ट लिया ना, उधर मैंने जो जो टॉपिक्स पिक किया था वो एक्चुअली
एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली आ गए थे, थोड़े फिगर्स चेंज होके, तो वो इतना मुझे मस्त लग रहा था जब मैं लिख रही थी। एवरी दैट 1 hour वाज सो फ्रूटफुल, ऐसे लग रहा था सर। तो और मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स जब जैन में दिया था तो मुझे पता है मैंने कैसे लिखा था, और अभी मैं कैसे इस बार इस मॉक में कैसे लिखा, तो दैट्स बहुत बिकॉज यू फर्क है सर। प्रैक्टिसिंग एवरी डे ना, एक हफ्ते से रोज लिख रहे हैं तो वो अपने आप इम्प्रूवमेंट नेचुरली आएगी. ओके, थैंक नाउ यू टेल फॉर मी अबाउट द इनकलकेटिंग मार्क्स. इन एज वेल। माय प्लेजर. टेल मी अबाउट द मार्क्स. 80 में क्या क्या मार्क्स आए तब 48 आए। टोटल? हाँ टोटल। ओके. उसमें से 20 मार्क्स एमसीक्यूज का है। जो 10 नहीं आया वो क्यों नहीं आया? सर 10 मुझे एमसीक्यूज में ये टाइम भी लगा सर, और कॉन्सेप्चुअल नहीं बोल सकते, मैंने किया ही नहीं था सर वो। 10 मार्क्स का किया ही नहीं था आपने कभी वो एरिया? नहीं, पूरा 10 मार्क्स का नहीं सर, अराउंड 4 मार्क्स का किया नहीं था, और 6 मार्क्स? और 6 मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं था सर उस चैप्टर का, एनआर टैक्सेशन का, उस पे वर्क करना है मुझे। You felt previously that you had that conceptual clarity. After test you realized this, or previously you knew it? तो प्रीवियसली पता था, लेकिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रही थी मैं। Okay. तो वो अभी इतना इस मॉक के बाद तो बहुत रियलाइज हुआ कि एमसीक्यूज पे करना ही है। Right. मुझे लगा था कि एमसीक्यूज क्या मतलब तो कितना ऐसे भी ही हो करो जाते हैं. कम लगेगा ऐसे। वो तो ऐसे ही हो जाता है, अक्कड़ बकड़ बम पे वो कोई भी कर दो हो जाएगा पूरा 100. ऐसा लग रहा था सर। ऐसा नहीं होगा बच्चे. और बाकी में डिस्क्रिप्टिव बाकी 48 माइनस 20 सर, 28। उसमें क्या प्रॉब्लम हुई? सर उसमें कितने प्यारे से आप मुझे कैलकुलेशन करके बता रहे हो, बात खत्म. जो सर जानना एक है तो गलती है मैंने ठीक है. क्या सर सिली मिस्टेक कर दिया, मतलब ऐड नहीं करना था, ऐड कर दिया, तो ऐसे थोड़े सिली मिस्टेक किया है। और रेट्स और रिकॉल इश्यू था सर थोड़ा, बिकॉज मैंने सब कुछ एक बार कंसोलिडेट करके उतना टाइम नहीं मिला ना, 2-3 एक दिन से कर रही थी सर। जब आपने बताया कि अभी छोड़ दो नया पढ़ना, तो एक दिन मैंने जो जो होता था उतना ही रिवाइज कर दिया, तो बाकी चैप्टर्स का रेट्स वगैरह याद नहीं आए, तो उसके वजह से डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स गया। That's okay. But still, लेकिन मैंने out of 50 you scored 28. हाँ तो वो सारा का सारा क्योंकि रिकॉल नहीं हो रहा था इसलिए था, या कुछ और भी था? एक तो आप प्लस माइनस के ब्लंडर्स प्रेजेंटेशन बता रहे हो. और सॉरी सर, प्लस माइनस के ब्लंडर्स बता रहे हो. हाँ प्लस माइनस के ब्लंडर्स भी है सर, और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, मतलब बहुत जैसे सृजन ने बताया लेट लेट के लिखते हैं ना आईसीआई, हम तो एक एक मतलब शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो वो एक करना। So दो बातें. एक, लेट लेट के लिखना नहीं है, विच मीन्स आप शुरू का 1 घंटा गवा नहीं सकते हो. करेक्ट। बट लेट लेट के लिखना है कि सब कुछ लिखना जरूरी है ना. दो इसके डायमेंशंस है, तो दोनों समझ लेना, पता चले दोनों में से एक को पकड़ लिया. यस सर। ठीक है, व्हाट एल्स? सर एक बात पूछनी थी, बोलिए मतलब बच्चा. एक चीज से कैसे डील करना है, पता नहीं कि मैं सिर्फ मैं ही ये फेस कर रही हूँ कि आप कोई और भी कर रहा है। सभी कर रहे हैं, ऑलरेडी बता रहा हूँ. सर ये जब एनालिसिस होता है ना, जब तक मेरा टर्न नहीं आता तो मुझे फोकस नहीं होती सर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इधर फोकस करूँ क्या इधर फोकस करूँ, तो ऐसा करके वो 1 घंटा चला जाता है सर ऑलमोस्ट। तो मैं क्या करूँ इस पे, आप क्या बोलेंगे सर, मैं सबको कैसे बोलो डील कि करूँ? सर सबसे सिर्फ 2-2 मिनट में बात किया करो, सबकी पूरी बात कभी मत सुना करो. सबसे आसान तरीका है. तो मुझे बोलना नहीं चाहिए शायद, बट अभी पीक टाइम है, तो आपसे सोल्यूशन मांग रही हूँ सर, क्या तो करूँ? मुझे लगा कह रहे हैं कि बोलना नहीं चाहिए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर कि नहीं। प्लीज कम टाइम कर दो. सर वो हो रहा है, वो मेरे साथ भी हो रहा है, वो सही बोली इसने। हाँ, ये चीज मेरे को भी रियलाइज होती है दोस्त. क्योंकि मैं साउंड इसलिए क्या होता है बहुत ना, बार साउंड कम भी कर देता हूँ ना, तो ध्यान लगा रहता है कहीं सब बोल तो नहीं रहे, मेरा नाम तो नहीं ले रहे होंगे कि मतलब बुलाने के लिए डिस्कशन के लिए, तो ध्यान उधर लगा रहता है। या तो सिंपल सी चीज रखते हैं, अल्फाबेटिकल रख लेते हैं, सिंपल एज दैट. हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलूंगा. हाँ उससे क्या होगा कि सभी सॉर्ट कर लो अपनी गैलरी में अल्फाबेटिकल. खुद को पता होगा कि किसकी टर्न पूरी होती जा रही है. जब आपसे पहले वाला 1-2 होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. सिंपल एज दैट. यस सर, बाकी टाइम आप ऑडियो ये बंद रख बेस्ट सकते और हैं. सर एक इसका और भी सॉल्यूशन है ना, कि हर बंदा अपना एनालिसिस करने के बाद में 3 पॉइंटर्स देगा, व्हाट वेंट वेल, वन लाइनर, व्हाट वाज रॉन्ग, एंड व्हाट माइट बी द सॉल्यूशन दैट ही शुड फोकस. That's the So one KPMG. That's the KPMG boy.
So without the point, टेल we मी द will क्रक्स। tell me the crux. आप मैं आपको ज्यादा कहानी सुनने में मैं तो चाहता ही इंटरेस्ट यही हूँ कि टेल मी द क्रक्स, एग्जैक्टली बट प्रॉब्लम ये है ना दोस्त, हाँ वो भी सीखना बहुत मुश्किल काम है अपने आप में। इट्स बट साथ इट्स में इमोशंस इम्पोर्टेंट ना फ्लो इन अ होते प्रोफेशनल रहते हैं। वर्ल्ड, वो इट्स वेरी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ना इन होगा थोड़ा प्रोफेशनल सा, वर्ल्ड ना। थोड़ा सा वो सब्जेक्टिव होगा, मतलब डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, मतलब थोड़ा वो तो वहां पे मतलब दिखा सकते हैं, बट ये टाइमिंग का थोड़ा ज्यादा, ये जो नहीं नहीं, मतलब वो मैं अल्फाबेट। मना नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज हमारे 20 बंदे होते हैं, जिसमें से टेस्ट अराउंड 15 जने देते हैं, ठीक है? तो 15 जने में ऑन एन एवरेज 2 मिनट भी लगाए तो 30 मिनट्स में हो जाना है, और 30 मिनट्स में लगाने के लिए 1 मिनट आपका होना चाहिए और 1 से 1.5 मिनट सर का काउंटर फोर। सो इट विल बी हेल्पफुल कि हम अपना टाइम खुद से एनालाइज करके मैनेज, मैं बिकॉज वी आपको और नो। बेटर आइडिया देता हूँ। आप लोग अपना अपना एनालिसिस लिख के टेलीग्राम पे डाला करो, जो मैं करेक्ट पहले भी बोल चुका यस हूँ। सर, वही करेक्ट मेरे सोच को रही दैट थी। मेरे को आपकी बातें सुननी नहीं पड़ेंगी जो सुननी पड़ती हैं। मैं करेक्ट सिंपली मैं पोज करूंगा, आप लोगों का एनालिसिस देखूंगा, वापस मैं आऊंगा तो 1.5 मिनट में मैं बात कर पाऊंगा। मैंने इसीलिए पहले दिन यही कहा था कि अपना एनालिसिस टेलीग्राम में डाला करो। यस पोस्ट सर। एनालिसिस मेरे से बात करने के बाद नहीं, आप एनालिसिस कर लो, आप डाल दो, मैं देख लूंगा सभी का, मैं खुद पिक करता जाऊंगा और बात करता दैट जाऊंगा। विल बी द बेस्ट ऑल्सो। उससे उससे एक तो वो रिसोर्स सभी के लिए बनता जाएगा, सबको सबकी गलतियां पता होंगी। सर उसके लिए टेम्पलेट बना दो, नहीं तो वही फॉर्मेट की क्या था। इट्स एक्सेल जस्ट में, गूगल शीट में बना दूं? गूगल तो नहीं, डॉक गूगल बना शीट लेते हैं ना नहीं। नहीं नहीं, गूगल नहीं, शीट एक पे सर एक गूगल फॉर्म बना लेते हैं ना, लेट्स से आज डे वन का। नहीं, नहीं जरूरत है। आप उतना सिंपल सी बात है, नहीं। आपकी नहीं नहीं गूगल शीट। सर, आप बना सुनो दोगे तो आपके पास सारे रिस्पॉन्स आ जाएंगे सर। सुनो दोस्त, आपके पास आपकी गूगल शीट है, उसमें नीचे एक हाँ शीट ऐड करो, वहां पे ऊपर सिर्फ एक टैब क्रिएट करो, अपना टेस्ट लिखो, टेस्ट की डेट लिखो और अपना एनालिसिस उसके सामने लिख दो। सिंपल। मैं आपकी करेक्ट, शीट खोलूंगा, आपकी शीट में देख लूंगा क्यों हमने इस सब में भी पढ़ना है। हाँ, सही वो जो बात है। बनाओगे उसकी स्नैपशॉट उठा के आप टेलीग्राम में भी डाल दो ताकि दूसरों के पास भी अवेलेबल रहे। दैट विल बी द बेस्ट। उस केस में मेरे को भी इतना कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। करेक्ट, मेरा भी तो टाइम उतना ही ज्यादा लगता है ना। यस सर, आई मेरे को भी बिलीव देखो आपका घर टाइम जाना बहुत। होता है। एक्चुअली करेक्ट, सर इसीलिए तो मतलब 2 दिन से सोच रही थी कि पूछूं क्या। अरे फिर अच्छा क्यों पूछ सृजन ने लिया बेटा, इसलिए बताया अच्छा कि किया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। सर ने सृजन का भी आइडिया था कि दोनों मिलके एक किए थे कि पूछेंगे हिम्मत क्या, करेंगे। हिम्मत करेंगे क्या। अरे अच्छी बात है दोस्त, अच्छी बात है, वो क्लैरिटी होनी जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी हम भी फ्यूचर में भी हम रिव्यू कराने जाते हैं तो इट नीड्स ना कि अरे भाई वहां पे अपना फालतू की बात नहीं सुनते हैं भाई। आप किसी कोई आप भी अपनी फालतू की बात कह रहा है आप कि आप मिडिल प्लीज फर्म निकल में हो, जाओ। आप स्मॉल फर्म में हो या आप एक बिग फर्म में हो, फालतू की बात कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। यू आर सपोज टू गिव द क्रक्स, द डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी देयर ऑलरेडी। तो प्लीज मेरे को मेरी डॉक्यूमेंटेशन दे दिया करो, मैं बाकी चीज पूछ लूंगा। करेक्ट ठीक है। सर करेक्ट। थैंक यू सो मच हेलो सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुभम जी। सर मैं बोल रहा था ये जो एनालिसिस का अपने बात कर रहे हैं, इसको अगर कोई छोटा सा ही क्वेश्चनर फॉर्म में अगर बना दे तो शायद आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। वही वो सिंपल सा हम बना रहे हैं ना कि आपने कितने क्वेश्चंस हाँ, अटेम्प्ट कि किए एक आप। ये बुलेट पॉइंट्स होगा कि आपने कितना मार्क्स अटेम्प्ट किया, आप लास्ट में आप अपना खुद का एनालिसिस आप लिख दो, तो क्या पर्पस है तो वही है। दूसरों को कि समझने में आसानी होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई कोई चीज पहले लिख रहा है, नहीं कोई नहीं नहीं चीज नहीं, बाद। वो एक सिंगल फॉर्मेट ही रहेगा, वो सिंगल फॉर्मेट ही रहेगा। मे बी यू हाँ पीपल कैन हाँ क्रिएट इट और आई विल क्रिएट इट, बट वो एक सिंगल फॉर्मेट ही रहेगा ताकि सभी सिमिलर टाइप की ही बात कर रहे हैं। हाँ 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 ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि कोई कहीं से कोई कहानी बोल रहा है, कोई कई कहानी बोल रहा है, हाँ। हर बार एक वो लॉजिकल इन्फ्रेंस ही नहीं निकल रहा है। वो जो सृजन ने बोला वो एग्जैक्टली यही था, इट शुड बी 3 पॉइंटर काइंड ऑफ थिंग। तो शायद मैंने थैंक यू। थोड़ा आधा ही सुना, मैंने पूरा नहीं सुना। अच्छा नहीं, सृजन ने वो चीज बोल दी थी ऑलरेडी, बट थैंक यू फॉर दैट। हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? से ठीक जा रहा ठीक जा रहा है? डर लग रहा है? है। डर सर कब नहीं लगता है। कब नहीं लगता? माउंटेन ड्यू पिया करो। नहीं सर। है सर, माउंटेन ड्यू कभी सब्स्टिट्यूट होता है सर। ठीक है। I'll talk to you Shubham tomorrow. Be there. You're there only in evening or you are there in the morning time नहीं नहीं also? सर, आज एक्चुअली क्या हुआ ना, आज पापा को हॉस्पिटल लेके जाना था, तो इसलिए मेरे को टाइमिंग का थोड़ा इशू हो गया था। नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, ये कल से यू एग्जाम बेटर का। बी देयर एंड टेस्ट का जो है टाइम 3 to 4 हमने रखा हुआ है, 1 hour टेस्ट, रेंडम टेस्ट, एनीथिंग हम्म फ्रॉम द प्रीवियस डेज विदाउट हम्म, रिविजन्स, जस्ट अ क्विक रिकॉल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो आप कल से पार्टिसिपेट करना शुरू करो। हाँ हाँ, श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष भाई, गिव मी द 3 pointers। सृजन पूछेंगे पहला पॉइंटर। सृजन पहला क्वेश्चन बताओ क्या है? हु आर यू? नहीं नहीं, व्हाट वेंट वेल, सबसे पहली बात, व्हाट वाज योर मिस्टेक्स यू हैव आइडेंटिफाइड एंड व्हाट यू थिंक हाउ कैन यू इम्प्रूव। क्या 3 पॉइंट। कहोगे? कितना प्यार से बोल रहे हो भाई। प्रोफेशनल क्वेश्चन बहुत प्यार से पूछता है। क्लाइंट से भी सर प्यार से पूछना पड़ता है ना, तभी आंसर आता है। वहां सब कुछ करना पड़ता है। वहां एग्जैक्टली। टैग भी लगाना पड़ता है, क्वेश्चन भी लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, बट गुड गुड इट इज। यस आशीष, हु आर यू? चलो,
कवर करना, मतलब जो छोड़ा था मैंने वो थोड़ा कवर करना पड़ेगा अच्छे से। ओके टेस्ट का वो था कि मतलब मिस्टेक्स तो हुए, मतलब 2-3 क्वेश्चन में अच्छे मिस्टेक्स हो गए उसमें। एक नहीं, तो जो छोड़ा है वो पार्ट तो करना ही पड़ेगा। मिस्टेक्स किस में हुआ है? मिस्टेक्स हुआ है, मतलब वही एक तो स्टेप्स भूल रहा था मैं एक क्वेश्चन में, तो स्टेप्स ही मतलब वो। दूसरा एक क्वेश्चन में क्या हुआ कि अमाउंट का वो था कि मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक था वो भी, लेकिन लास्ट पार्ट में हुआ था तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आया कि मतलब मेजर वो पोर्शन पूरा हो चुका था काइंड हाँ। ऑफ। और एमसीक्यू का तो मतलब किया तो 30 में आ रहा है, 22 आ रहा है, 4 गलत है वहाँ। ओके, जो गलत है वो क्यों गलत है? उसका थोड़ा देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है। तो देख लीजिएगा भाई साहब, वो बहुत जरूरी है जानना क्यों गलत है। हाँ, एमसीक्यू का तो देखना पड़ेगा। ओके, बाकी डिस्क्रिप्टिव में? डिस्क्रिप्टिव जो मतलब प्रैक्टिस तो मैंने किया था 2-3 दिन से पहले से, तो बाकी तो ठीक थे, मतलब कुछ में जो मेजर क्वेश्चन है उसमें गलती हो रही है। डिस्क्रिप्टिव में टोटल कितना आया है? टोटल तो दोनों मिला के जा रहा है 22, और इधर 32 के आसपास, मतलब 54 के आसपास बना था। ओके, उसमें तो से आप 15 अटेम्प्ट कितना 15 किया था? अराउंड 85 के आसपास attempt। 55 में से आपका कितना है? 32, 33? नहीं नहीं, 85 टोटल में एमसीक्यू इंक्लूड करके, और ओवरऑल मार्क्स था 53 के आसपास। आपने 85 का अटेम्प्ट किया था ना? हाँ 85 इंक्लूडिंग ऑल दी एमसीक्यूज। हाँ हाँ, सब तो include। 30 में से 22 आ गया, और बाकी जो आपका है वो कितना, 55 बना ना? हाँ तो 55 में आपका 32 आया है। हाँ ओके, इसमें जो गैप है वो क्या है एग्जैक्टली एक तो आपने जो भी आपका मिस्टेक लास्ट में कैलकुलेशन का हुआ है। मेजर तो वो मतलब एक तो मतलब स्टेप्स भूल गया था उसका था मतलब, और एक ये कैलकुलेशन मिस्टेक था वहाँ पे, जो ओके, कि लास्ट क्वेश्चन। तो इससे आपके सीधा 23 मार्क्स कैसे कट गए? बीच बीच में भी तो काटा है, मतलब फुल मार्क्स तो मतलब मैं अच्छा, फिर जनरली ठीक है, करता फिर हूँ ठीक है, तो। फिर ठीक है। मुझे लगा कहीं और भी कुछ ऐसा हैवी लेवल पे नहीं कुछ नहीं, हुआ है। मैं पूरा पहले क्वेश्चन भी कोई भी ऐसा खराब नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। आपने बेसिकली वो टाइट मार्किंग की है, उसकी वजह मैं से रिडक्शन हाँ, आपकी मैं है। पहले भी इवैल्यूएशन करता था खुद से, तो मेरा एग्जैक्ट सेम जाता है। जैसे 2-3 बार हुआ है मेरे साथ कि अगर मैं 54 दे रहा हूँ तो मे बी कि वो 54-55 पे जाएगा, मतलब इस लेवल का भी एक्यूरेसी गया है मेरा। 2 साल तो बाद मतलब आपको एग्जामिनर लगवा देंगे। नहीं नहीं, मैं तो अपना पता नहीं, मेरा जाता है करेक्ट अराउंड अच्छी बात है, नहीं नहीं, जितना अच्छी बात है। वो क्रिटिकल इवेल्युएशन आपकी सही जा रही है तो दैट्स गुड। दैट ऑब्जर्वेशन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं, अभी है इम्प्रूवमेंट का पूरा 1 महीना है, अभी 1 महीना में करना पड़ेगा इसको अच्छे से। ठीक है, कूल। कल मैं क्या करूंगा, मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर दूंगा, मैं फिनिक्स वाले में ही डाल दूंगा, जो स्कोरबोर्ड वाला है उसमें एक एडिशनल शीट क्रिएट करके वहां से कॉपी करके प्लीज अपनी शीट में खुद कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं तो सभी में करना पड़ेगा। ठीक है? नहीं नहीं तो मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, वो कर देंगे, चलेगा। और कुछ? अरे राज, नहीं, राज भाई, आई एम सो सॉरी, बहुत सारा वेट करवा दिया दोस्त। कल से नहीं होगा, हमारे पास सोल्यूशन है। आप आई एम पहले थैंकफुल मैं सर। बहुत देर तक बैठा रहता था, फिर मुझे मिली एक नई शीट। आई एम थैंकफुल फॉर योर एफर्ट सर, वेरी थैंक। दोबारा बोलिए। आई एम थैंकफुल फॉर योर एफर्ट सर। माय प्लेजर दोस्त, माय प्लेजर, थैंक यू सो वेरी मच। काइंड ऑफ। बस, क्या हो गया दोस्त? नहीं सर, कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा आज थकान लग रही मुझे लगा कि भावुक कितने हो गए हो, कह रहे हो बस सर दिल भर गया, अब और नहीं बोल पाऊंगा। है। रीजन और स्नेहा की बात सुनकर जरूर मैं भावुक हो गया थोड़ा सा। स्नेहा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, हाँ हाँ, स्नेहा। स्नेहा, स्नेहा, यस, उनकी बात सुन के भावुक हो गए कि टाइम इतना ज्यादा लग रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने पहला सेंटेंस ही बोला कि आई एम थैंकफुल टू यू। होता क्या है कि मतलब मैं भी थोड़ा सा बता ही रहा हूँ, पर होता क्या है ना कि अपन जब प्रिपरेशन फेज में होते हैं ना, तो अपन को चाहिए होता है एक्नॉलेजमेंट, और जब आप बात करते हैं ना तो वो एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो अपन हो जाते हैं इमोशनल, तो अपन को याद नहीं रहता कि बताना क्या है क्या नहीं बता, तो थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है, बट इट्स ओके। तो ओवरऑल कैसा गया है? अच्छा था सर टेस्ट, मतलब ठीक ही था। मैंने उठाए तो 250 थे, पर मैं उनमें से 200 ही कर पाया, और कर लेता मैं 250, पर मैं 2 घंटे 20 मिनट के आसपास मैं चलो बंद ठीक कर है, दिया था क्योंकि नो नहीं प्रॉब्लम। हुआ था 200 मेरा। आपने किए एंड देन? 200 किया है, उसके बाद वन मतलब 200 में से, सॉरी 200 में से 167 किया है, और उसमें से करेक्ट है 154। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने 250 उठाए थे या 200 उठाए थे? उठाए 200 थे, पढ़े पूरे क्वेश्चन हैं, उनमें से अटेम्प्ट 154 किया है। ओके, आपने स्किप किए कुछ? हाँ स्किप किया है, तो ओके, मतलब टोटल अटेम्प्ट अगर कहूँ तो 171 है, उनमें से 154 करेक्ट है, और छोड़ा है मैंने 29 मैंने छोड़ दिया। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। जो नहीं हुए उनमें क्या दिक्कत थी? पहला तो सर प्रॉब्लम थी एप्लीकेशन की, और जो थोड़ा सा हार्ड आ गए थे तो मेरा दिमाग चल नहीं रहा था, सिंपली कि मैं सोया नहीं था अच्छे से, तो वो मतलब माइग्रेन थोड़ा सा हल्का हल्का था उस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा सोच नहीं पाया, और जो छोड़ा है उनमें से अभी किए जा सकते हैं, बट वही था कि एप्लीकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोचा कि अगर करूंगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैंने छोड़। टोटली फाइन, टोटली फाइन। स्टिल यू डिड ऑलमोस्ट 150, देखा जाए तो क्लियरली। यस यस, दैट्स गुड, दैट्स मतलब रियली।
एक्यूरेसी के आसपास है, 74। ठीक है, बट अगली बार जितने रिक्वायर्ड है उतने उठाना। आप कम टाइम में खत्म कर दोगे, दैट इज गुड। इन स्पाइट ऑफ कीपिंग मोर प्रेशर ऑन यू, पिक अप द यस नीडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज पर स्टैंडर्ड। आपने वो जल्दी यस खत्म कर दिया है, दैट इज अ विन विन सिचुएशन ओनली। यस You'll be able to think more calmly and wisely in that case, in spite of going wrong on things that probably you could have very easily, corrected if you were reading without any, that speed and pressure feeling. यस सर। कम टाइम में खत्म होना इज ओके, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेने से आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, आप सिर्फ प्रेशर दे रहे हो अपने आप। हाँ सर, वो थोड़ा सा फील हुआ था मुझे, क्योंकि लास्ट में मैंने फिर इसीलिए छोड़ भी दिया, क्योंकि करने का कोई फायदा था नहीं ये और ही रॉन्ग जा रहा। बेसिक स्टैंडर्ड कल भी मैंने बोला था कि आपके 50 एक घंटे के बनते हैं, तो उसके मुताबिक जितने भी आवर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेके चलो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेने। आप कम टाइम में करोगे वो चलेगा। एक्चुअली मैं 1 घंटे में 100 कर रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं मैंने उठा दिए थे 250, नहीं, पर ठीक है। आपका कम टाइम में खत्म हो जाए ना, बात खत्म। हमारा यस पर्पस ज्यादा क्वेश्चंस टेस्ट करना नहीं है, हमारा पर्पस है विद इन द टाइम लिमिट अप्रोप्रिएटली सारा आंसर करना और सही आंसर कर पाना, दैट्स इट। ज्यादा क्वेश्चन सर। से वो चीज का कोई अफर्मेशन नहीं आता है। नहीं सर, एक्चुअली उसका रीजन ये था कि मैं 25 में थोड़ा सा मुझे ज्यादा टाइम लग गया था, तो मैं इस बार जानबूझ के प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं थोड़ा सा कम टाइम देके, मतलब ऐसा था कि रीडिंग स्पीड बढ़ानी थी मुझे अपनी, तो मैं पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ले रहा था कि रीडिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो प्रोसेसिंग अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि 25 वाले में हुआ क्या था कि मैं नियरली 1 आवर 40 मिनट में फर्स्ट रीडिंग किया, और ऐसा होता है कि 70 मिनट या फिर 90 मिनट के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाए तो आप गुड पोजीशन पे रहते हैं। तो मैं सेकंड रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा मिस्टेक कर दिया था। But I'll still suggest take only the equal number of questions that are standard. Picking यस सर। more questions will not, trust me, improve your speed. It will only give you more pressure, which will give यस you a position where you will end up mistaking those questions which you might have done correctly. यस तो स्पीड आपकी आप ओवरऑल रिड्यूस कर सकते हो उस टाइमलाइन में, प्लीज उस चीज पे ध्यान दो। यस सर, मैं करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत सर धन्यवाद आप सभी का। मैंने बताया नहीं, 2 मिनट, आई विल टेक योर टाइम। ओए, अभी तो कह रहा था कि सर आप लेट हो जाते हो, टाइम से घर जाया करो। मैं अपना बता दूं एक बार टेस्ट का, जस्ट अ मिनट है। ओके, मैं अपने टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ: एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव एंड क्वेश्चन, राइट, न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यू आउट ऑफ 30 28 आए। सृजन, हमारी बात शुरू में हुई नहीं क्या अभी तक? नहीं अरे भाई साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा हमारी बात हो चुकी है। नहीं आई एम सो सॉरी। नहीं, ओके। तो एमसीक्यूज में आउट ऑफ 30 28 आए हैं। एमसीक्यू इज गुड, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव में मैंने हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स, मैक्स 3 मार्क्स दे रहा हूँ, और क्या कहते हैं, लोएस्ट में 1 मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे, आई बिलीव कि मेरे थ्योरी पार्ट जो है वो वीक जा रहा है। लाइक आईसीआई जो लिख रहा है मैं पहुंच रहा हूँ, बट बहुत देर से। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आईसीआई इज टॉकिंग अबाउट 3 पॉइंटर्स एट द बिगिनिंग, राइट, बट मैं उसको लास्ट तक में ले जा रहा हूँ, और मेन आंसर और मेन सॉल्यूशन में डेविएशन आ रहा है बेसिकली। तो आपका सीक्वेंस सही नहीं जा रहा है इन अ वे। राइट राइट, पहुंच तो मैं भी जा रहा हूँ, बट लास्ट में पहुंच रहा हूँ, जब तक आईसीआई माइंडसेट बना लेगा कि भाई ये तो गलत, काइंड ऑफ। उसका मतलब ये है आप क्वेश्चन को सही तरह से पिक नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है उसमें बहुत क्लियर ये चीज को समझना जरूरी है कि पहले क्या चीज पूछी गई है। आप कई बार लास्ट जो है ना बात, उसको देख लेते हो बस, और उसको देख के आंसर शुरू कर देते हो। बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि लास्ट की लाइन में ही आंसर छुपा होता है, बट बहुत बार खासकर ऑडिट के बीच में बहुत ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जहां आपका क्वेश्चन जम्बल्ड होता है, ऊपर भी कोई 2 बात पूछी गई होती है, आप रिवर्स करके कैसे भी पूरा आंसर लिख देते हो अपनी तरफ से, बट वो पूछा जो गया होता है वो फ्रेमिंग के मुताबिक ही स्पेसिफिक एरियाज का आंसर देना जरूरी होता है, विच अगेन मीन्स व्हेन यू आर जम्बलिंग दैट योर आंसर में टोटली बी कट आउट, क्योंकि वो ये मान के चलेंगे कि आपने अलग पार्ट्स का अलग आंसर दिया है जो आपस में रिलेट नहीं हो रहा है। आपने बस पूरी बात लिख दी है कि कहीं तो कुछ होगा, तो उसका फायदा नहीं है। करेक्ट। तो लाइक इंडिया से 101 का क्वेश्चन था, देन आई जस्ट जो पूछा था वो मैंने लेट लिखा है, जिसकी वजह से आई बिलीव कि मार्क्स मिलेंगे कम मिलेंगे। बिल्कुल। तो थ्योरी पार्ट मेरा लगा कि वीक है, एंड न्यूमेरिकल पार्ट एज आई सेड आई हैड इम्प्रूव्ड इट। लाइक जितने थे ऑलमोस्ट सारे सही हैं, गुड, ठीक है। वेरी गुड। और जो गलत भी हैं तो ये था कि वो चीज ना मैंने स्किप कर दी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई लिखा है कि 2011 से 2013 आई हैव टू मैप वेयर आई हैव टू डिप्रिशिएट करना है, तो मैंने वो 2011 2013 में मेरे को ध्यान नहीं रखे, वो गैप है एक, राइट। एक क्वेश्चन में ये मिस्टेक था, एंड सेकंड क्वेश्चन में ये था कि उसने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि इसको पॉइंट को पकड़ना है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं मैंने उसको स्किप कर दिया मिस्टेकनली, मतलब मैं इसको इवेल्युएट नहीं कर पाया कि उसको ही पिक करना है। एक तरफ से आप कह रहे हो क्वेश्चन में वो स्ट्रेट अवे कह रहा है कि इसको पिक करना है, मतलब वो कह रहा है बट आपको समझना पड़ेगा कि वो उसको पकड़ना है बेसिकली है, बट नहीं है,
क्वेश्चन इन 100, ठीक है। वो तो तो कह वहाँ रहे हैं पर हम उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जैक्टली तो वहां पे मैंने मिस्टेक करा दो न्यूमेरिकल पॉइंट में, मतलब फुल न्यूमेरिकल का एक एक पॉइंट में, जिसकी वजह से 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स माइट भी कट जाए, ठीक है। सो ओवरऑली कहूँ तो मेरे को थ्योरी पार्ट में इंप्रूव करने की जरूरत लगी, मतलब मोर प्रैक्टिस इन थ्योरी। एंड सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो और फोकस्ड वे में क्वेश्चन रीडिंग करनी पड़ेगी टू गेट टू द एग्जैक्ट पॉइंट, आई बिलीव। जो वो कह रहा है वो बात हम भी सुन रहे हैं। एग्जैक्टली अक्सर ऐसा होता है जिंदगी में भी, कोई कह कुछ रहा होता है और हम समझ कुछ रहे होते हैं। एक्चुअली जब वो कह रहा था हम उस टाइम पे रियलाइज नहीं कर सुनते तो हैं बट रियलाइजेशन होनी इम्पोर्टेंट, और वो रियलाइजेशन तभी शुक्र होगी है आप लोगों ने मेरी प्रैक्टिस। बात सुननी टाइम से शुरू कर दी है, पता चलता पेपर के बाद ही रियलाइज कर रहे हो। एग्जैक्टली एंड जैसे मैंने ये 2-3 चीजों पे एफर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। मेरे को लगता है अभी मैंने अपने आप को सबसे हार्श नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी करके मैंने अराउंड 63 to 68 के बीच में बैठ। That's still good. That's still good, which means you have done pretty well. But then again, these are the areas you need to work on because वो that will नेक्स्ट make a great टेस्ट difference. अगर पेपर कभी भी difficult आने वाला है, तो one who has actually done all this critical analysis and at the same time given tight marks is the one who will survive. The one who is not taking care of these things, doing this critical analysis and is somewhere doing as much tight marking, वो fall flat. That person is definitely going to fall. एग्जैक्टली जैसे कंसोलेशन 14 मार्क्स का था, बैलेंस शीट भी मैच है, फिर भी मैंने उसको 10 ही मार्क्स कि भाई उसको प्रेजेंटेशन ठीक नहीं आई या उसको कुछ भी पसंद नहीं आया, लेट से कितना काटोगे, काट लो जितना काट, तो 10 मार्क्स तो दोगे ही काइंड ऑफ। ठीक है, अच्छी सोच है। तो सर आई बिलीव कि सर एक छोटा सा आपको चले सजेशन जाना है। चाहिए सर। नहीं नहीं, एक लास्ट सजेशन सर, कि ये ना हमारा एक वीक में एक रिवीजन तो कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट का। तो उसका सो 3 घंटे का जरूर ले लो, आप कह रहे हो। तो ये जैसे आज हो गया, लेट से ऑडिट सॉरी एफआर का हो गया, जस्ट नेक्स्ट वीक आई मीन अगले वीक 9th हम या 10th को 9th या 10th को एएफएम या मतलब जो दूसरा सब्जेक्ट का पिक जिसका करते जो हैं, भी हो, जिसका जो भी हो, जिससे क्या होगा कि लेट से हर एक दिन के बेसिस में हम डेली बेसिस में भी टेस्ट करते जाएंगे, एंड नेक्स्ट वीक में सब्जेक्ट रहेगा, माइंडसेट रहेगा कि एक हफ्ते के बाद तो टेस्ट है, मेन टेस्ट, तो उससे और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि तो हाँ। यही तो करने वाले थे दोस्त हम। लेकिन ये ना फिक्स नहीं हो रखा था कि डेट्स अब ना फिक्स यही था, कर नहीं लेते नहीं, हैं। अब तो फिक्स ही था कि अब हफ्ते हफ्ते बाद करेंगे, क्योंकि इसके बाद गुंजाइश ही कहाँ है। अब हम ये नहीं करेक्ट सोच सकते ना कि हम 25 तारीख को करेंगे। करेक्ट सर, तो तो वो नेक्स्ट तो वीक हमें, आप समझो कि अब 10 या 9 को हम एक कर रहे हैं तो 17 के करीब अगला करेंगे, ताकि सभी सब्जेक्ट्स के एक एक पूरे पूरे हो जाएंगे सभी के। मीनवाइल बीच बीच में जो स्मॉल पार्ट्स में किया है उससे काफी कुछ कवरेज हो जाएगी। बट थैंक यू फॉर द सजेशन, दो अगेन वी वर गोइंग टू डू दैट। और कुछ नहीं थैंक मेरे घर पे कोई संदेशा भेजना है? नहीं सर, आज टेस्ट ठीक हुआ तो ब्रेक में मस्त पनीर चिल्ली बनाया खुद। क्या बात है बेटा, क्या बात है। कभी तो हम भी बैठेंगे तुम्हारे साथ खाने। हाँ जरूर। ठीक है, हर रोज अच्छा टेस्ट दिया करो और बढ़िया कुछ अच्छा खाया करो। अब से मोटिवेशन है लाइफ की यही, कुछ एक्चुअली अच्छा खाना है तो टेस्ट अच्छा देना पड़ेगा। एक्चुअली आपने पुश करा था ना कि मैं कह रहा था कि मेरा आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा टेस्ट, बट आपने कहा कि या तो करो या तो छोड़ो, सिंपल वर्ड। आई बिलीव कि करते हैं, तो आई पुश्ड माई सेल्फ एंड हो गया। देखा, मैंने बात तो सीधी की थी, तुम सब लोग मेरे को बिठा ज्यादा टाइम लेते हो, मैं तो सीधी सीधी बात ही पूछता हूँ यार। अब मैं जाऊँ, कोई और तो नहीं रह गया, किसी और से मैंने बात नहीं करनी। अमृता देनी, हम कल बात करें अमृता, पक्का? थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू अराउंड। एंड पूजा सिंह, कल बात करते हैं, आना शुरू करो, गायब रहते हो आप, बिल्कुल ही गायब, लॉन्ग टाइम नो सी हो जाता है आपका। हाँ जी शुभम जी, दोस्त कल सुबह आओ, कल बात करेंगे, ठीक है? आज शांति से सो जाओ वक्त से, मैं भी जाता हूँ, अभी मेरे को बहुत डांट पड़ेगी घर जाकर। कितना खुश है रोहित, देखा सर को पकड़ के रख लिया, आज डांट पड़वाएंगे सर को, हमको डांटते।